Hello students, today's topic is A Farewell to Arms written by Ernest Hemingway. First of all, we come to know about Ernest Hemingway. He was born on July 21, 1899 in Oak Park, Illinois. He is an American playwright. Second, he served in World War I and he also worked in journalism. His writing was influenced by the harshness of war and time spent overseas. Students, he is also participated in First World War. So after the war, he has described the brutality, the harshness of war, because first time in the First World War machines has been used. So this time mostly the soldiers who took part in this war, they found themselves helpless before machinery, because a person found himself completely helpless because machines has overpowered on them. Man has no longer become the master of machine. So in this war, the soldiers feels too much tormented, mentally disturbed. He also working job at Toronto Star in Kansas. Some of his most famous novels written by him. Most famous novel are The Old Man and the Sea. Second, The Sun Also Rises. For Whom the Bell Tolls. A Farewell to Arms. And he committed suicide in July 1961. Ernest Hemingway got Nobel Prize for Literature in 1954. The present novel, The Farewell to Arms. First of all, we discuss the background of the book. The book is divided into, the novel is divided into 5 books. The parts of the novel were based on the Hemingway's personal life experiences, because he has also served in इटालियन कैंपेन्स इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. जो प्ले की सेटिंग है वो इटालियन कैंपेन की ही है. सेकेंड, ही वॉज इंस्पायर बाय कैथरीन बर्कले. सेकेंड, ही वॉज ऑल्सो गेटिंग हिट बाय पार्ट्स ऑफ अ मोर्टार सेल. ये उसके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है जो कि उन्होंने अपने इस प्रेजेंट नॉवल में शेयर किए हैं. यू कैन से दैट the novel is based on autobiographical background. Second, falling in love. After being hit by a mortar shell, he has been sent to a hospital and there he found a nurse and he falls in love with her. Frederick Henry had an affair with Catherine Berkeley. इस प्ले में जो हम देखते हैं. Hemingway also had an अफेयर विद एग्नीज वॉन कुरोस्की, जो कि वहाँ पे नर्स होती है. यहाँ जो कैथरीन बर्कले का कैरेक्टर है वो इसी नर्स से इंस्पायर है. अर्नेस्ट हेमिंगवे इज कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ लॉस्ट जनरेशन, और जो टर्म है लॉस्ट जनरेशन इट इज ऑल्सो गिवन बाय हेमिंगवे. ये क्या है? It has been also popularized by Ernest Hemingway, and this phrase, the lost generation, has been given by Gertrude Stein
for modernist artists who felt lost witnessing the effect of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बिकॉज जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ह्यूमन बीइंग को टोटली हेल्पलेस देखता है मशीन्स के सामने, क्योंकि फर्स्ट टाइम है मशीनरी का टू मच यूज हुआ था, तो यहाँ जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने आप को बेबस पाते हैं मशीनरी के बारे में, क्योंकि जैसे ही सामने से मशीन्स के थ्रू आपके ऊपर अटैक किया जाएगा तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा सोल्जर्स को उसमें अपनी जान गंवानी पड़ती है. तो यहाँ उसी जनरेशन को, उसी मॉडर्निटी को जो हेमिंगवे ने लॉस्ट जनरेशन कहा है इस प्ले में, और ये जो टर्म है वो गर्ट्रूड स्टेइन ने दी थी. अबाउट द सेटिंग ऑफ ए फेयरवेल टू आर्म्स. The setting is 1916 to 1918, middle of the First World War One, because the First World War started in 1914 and it was ended in 1918. और यहाँ जो उसकी जो मेन इस प्ले की सेटिंग है, दिस इज इन इटालियन कैंपेन. इट इज़ सेट ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट ये है सराउंडिंग बाय इटालियन कैंपेन. इट टुक प्लेस इन इटली एंड स्विट्ज़रलैंड. मोस्टली जो हमारी प्ले की सेटिंग है इटली और स्विट्ज़रलैंड के बीच घूमती है. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टेल you that the play is divided into 5 books. The 4 books have different setting. First, along the Julian Alps पर्वत के आसपास है. सेकंड, इन द सिटी ऑफ मिलान. थर्ड, इटालियन रिजोर्ट टाउन ऑफ स्ट्रेसा ऑन लेक मेगोरी. एंड फोर्थ, वेरियस टाउन्स एंड विलेजेस इन स्विस एल्प्स. दिस इज ऑल अबाउट द सेटिंग ऑफ द प्ले. let's something discuss about the plot. Frederick Henry, who is the main character of the play, meets a nurse and falls in love with her, whose name is Catherine Burghley. Then Frederick goes to the war front, लड़ने जाता है, and he was injured by a mortar shell. जो कि आपने देखा है कि ये सेम इंसिडेंट किसके साथ घटित होता है, जब अर्नेस्ट हेमिंगवे है अपनी लाइफ में भी इसी तरीके से वो वॉर फ्रंट पे जाता है और वो घायल हो जाता है. तो यहाँ प्ले की भी सेम स्टोरी है. सो इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ओन लाइफ. देन ही हैज़ बीन सेंट टू ए हॉस्पिटल and he confessed his true love to Catherine. During Frederick's convalescence leave, Catherine reveals to Frederick that she is pregnant. इसके रिजल्ट में क्या होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है. Frederick travels to front. जब वो फुली रिकवर हो जाता है, then he goes to the front and where Italian forces were losing, जहाँ पे Italian forces जब वो हार रही होती हैं. जर्मन ट्रूप्स ब्रेकिंग थ्रू इटालियन लाइन्स, और जर्मन ट्रूप्स है वो इटालियन लाइन्स को क्रॉस करके एंटर कर चुकी होती हैं. अलाइड फोर्सेज वर फोर्स टू रिट्रीट, और जो बची हुई जो इटालियन फोर्सेज होती है वो वापस भागने को मजबूर हो जाती हैं. हेनरी वॉज accused of the defeat and he loses of the Italian army. उस हार उस लॉस के लिए हेनरी को अक्यूज़ किया जाता है. तो जब उसको इस चीज़ के लिए अक्यूज़ किया जाता है तब वो भाग जाता है वहाँ से. एंड ही जम्प्ड इनटू द वाटर टू एस्केप फ्रॉम गेटिंग सीज्ड, कि वो पकड़ा ना जाए. लेफ्ट हिज गार्ड पोस्ट विच रिलेट्स टू द टाइटल ए फेयरवेल टू आर्म्स. अपनी जो उसकी जो पोस्ट होती है उसको छोड़ जाता है और यहीं से जो हमारा टाइटल को रिलेट करता है ए फेयरवेल टू आर्म्स. और स्टूडेंट, जो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने जो प्रेजेंट टाइटल है ए फेयरवेल टू आर्म्स, इट हैज़ बीन टेकन टू ए 6th century पोइट जॉर्ज पील, उसके किसी प्ले से लिया गया है. नाउ हेनरी गिव्स अप द वॉर टू फाइंड कैथरीन. अब वो कैथरीन को ढूंढने के लिए वॉर को छोड़ जाता है. ही एस्केप्स ऑन ए ट्रेन टू मिलान. एमिलियो हेल्प्स फ्रेडरिक हेनरी. एमिलियो इज वन ऑफ द माइनर कैरेक्टर ऑफ द प्ले फ्रॉम गेटिंग अरेस्टेड. ही यूजेस एमिलियोज बोट टू एस्केप and gives them direction to escape. कैथरीन गेट्स मूव टू हॉस्पिटल. अब कैथरीन वापस हॉस्पिटल में मूव करती है. एंड शी स्टार्ट्स गेटिंग
कॉन्ट्रेक्शंस, टू मच हेमरेजेस, उसको प्रॉब्लम होती है, सी इज एंड बेबी इज स्ट्रेंगल्ड बाय एम्बिलिकल कॉर्ड एंड डाइज। वो जो प्रेग्नेंट होती है उसको टू मच हम कहें कि उस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसको हेमरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से उसके बेटे की डेथ हो जाती है। एंड एट लास्ट कैथरीन ऑल्सो डाइज, वी फाउंड हर फॉलन अनकॉन्शियस एंड सी सफर्ड मेजर हेमरेजेस। उसको वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। नाउ वी डिस्कस मेजर कैरेक्टर ऑफ द प्ले। लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी, he is an American and he take part in First World War as an ambulance driver in the Italian army. Next, Miss Catherine Brackley, she is a nurse and she also falls in love with Frederick Henry. Next, Rinaldi, he is a surgeon in Italian army and friend of Frederick Henry. A priest in Italian army, he often discuss about God and war with Frederick. Frederick के बारे में वो God और war के बारे में डिस्कस करता है। Next, he is the minor character Helen Ferguson. He is a friend and fellow nurse of Miss Catherine. Miss Van Kempen, he is a superintendent of nurses. यहाँ पे मेजर और माइनर कैरेक्टर ऑल आर डिस्कस्ड। मिस गेक, एन अमेरिकन नर्स इन मिलान। डॉक्टर वेलेंटली, एन इटालियन सर्जन। गिनो एपेट्रियोटिक है, इटालियन है। बनेलो, ही इज ऑल्सो एन एम्बुलेंस ड्राइवर अंडर फ्रेडरिक हेनरीज कमांड, वो उसकी कमांड पे चलता है। पैसिनी, अनदर एम्बुलेंस ड्राइवर हु डाइड इन मोर्टार अटैक। Emilio, a bartender in the town of Stresa who helped them to flee to Switzerland, जो उसकी हेल्प करता है भाग जाने में फ्रेडरिक की। काउंट ग्रेफी, a 94-year-old nobleman having some past acquaintance with Frederick. Ralph Simmons and Edgar Saunders, two opera singers working in Italian army. This is also one of the minor character of the play. Students, so आपको मैंने प्ले की सेटिंग क्या है, समथिंग अबाउट राइटर ऑफ द प्ले एंड मेजर कैरेक्टर हैज़ बीन ऑल्सो डिस्कस्ड. सो आई होप you have well understand about these. Then we go through the whole story of the play. Thank you.